چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ اور مدنی چینل، اور آج ہم باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفٹن بلاک 5 میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام کے اندر آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے انشاءاللہ ہم کچھ سوالات کریں گے اور یہاں موجود حاضرین سے اس کے جوابات لیں گے۔ جوابات درست ہونے کی صورت میں انہیں پیارے پیارے انشاءاللہ عز و جل تحفے بھی دیے جائیں گے۔ اور اس پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ ایسا لے کے آتے ہیں کہ ایسا نہ کیجیے گا، وہ کیا عادتیں ہیں، وہ کیا کام ہیں جو کرنے سے ہمیں نقصان ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی پروگرام کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل کچھ نصیحت کے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ ایسی مدنی بہاریں، کچھ ایسے واقعات بھی دیکھیں گے جو زندگی میں تبدیلی کا سبب بنے۔ وہ کیا واقعات ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں۔ شامل رہے پروگرام آپ اور مدنی چینل میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی طرف۔ جی، تلاوت قرآن مجید کون کریں گے؟ آپ کریں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ۔ ماشاءاللہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سنیے اور اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جب بھی سبحان اللہ ہم کہیں گے تو انشاءاللہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نہ کہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ہم نعت شریف کی طرف۔ جی، نعت شریف کون سنائیں گے ہمیں؟ آپ سنائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا حضور؟ محمد عمران اتاری۔ محمد عمران اتاری۔ عمران بھائی ہمیں نعت سنائیں گے، تو آئیے ان سے نعت سنتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری، تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے مارو کا تو تجھ پہ ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا، پاس بلا لو اب تو پیارے آقا، پاس بلا لو اب تو آقا، مدت سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رو رو وقت گزاروں کیسے اب تو بلاوا جائے، رو رو وقت گزاروں کیسے
اب تو بلاوا آ جائے مژدہ مجھ کو حاضر کا کاش کوئی سنا جائے دل کو سکون میسر ہو اور روح کو چین بھی آ جائے میں ہی طیبہ جا پہنچوں یا دل میں طیبہ سما جائے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی مل کے پڑھیں سیدنا محمد اللہم صلی علی محمد بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے جا کر کہنا آقا سے کب وہ ہم کو بلائیں گے جا کر کہنا آقا سے کب وہ ہم کو بلائیں گے جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے رو رو حال سنائیں گے اور مل کر ہم یہ کہیں گے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب بھی قافلہ دیکھوں کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے میرے دل کو پل بھر بھی چین ذرا نہ آتا ہے رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے عمران بھائی کی آواز میں نعت سنی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اور کچھ یادیں مدینہ بھی تازہ ہوئی اے کاش کہ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے حاضری کا پروانہ ملے اور ہم بھی اپنے مرشد کے ساتھ جھومتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ آقا طیبہ بڑی دور ہے مگر آپ نے جسے بلا لیا اس کے لیے دور نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبق آموز واقعہ وہ کیا واقعہ تھا کیا ہوا کیا تبدیلی آئی کس طرح ہوا آئیے سنتے ہیں انسی اسلامی بھائی کی زبانی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زندگی میں ہم نے سنا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے آپ کو تبدیل کر دیا وہ کیا واقعہ تھا کیا ہوا ہمارے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کریں گے وہ واقعہ ایسا ہے جو زندگی میں میرے ساتھ ہوا جس میں مجھے تبدیلی نظر آئی وہ واقعہ ذرا افسوسناک تھا حیرت انگیز تھا واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں ہاسپٹل میں آفیسر ایز اے پریزنٹ تھا اس ٹائم پہ میں اپنے 9:05 PM کے بعد آف ہو گیا دکان پہ آیا تھا وہ میرے لیبر کپڑا مارکیٹ کے حساب سے ایک لیبر کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ماروی پور اڈے پر اس کی معاملات یہ تھے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بندے میرے پاس آئے وہ آئے کہنے کے لیے کہ ہنی بھائی یہ معاملات ہوئے کہ خدا کے واسطے ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے بڑے بھائی کا کسی طریقے سے اس معاملات کو ہینڈل کر لیں آپ کسی طرح ہاسپٹل میں داخل کر دیں اس حساب سے مجھے وہاں پہ ایمرجنسی میں جانا پڑا تو میں نے کہا اسی ٹائم پہ میں چلے گیا تھا ان کے پاس وہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ہاسپٹل کے جیسے پہنچا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی ایکسیڈنٹ کے یہ کیس تھا کہ
एक हड्डी जो पैर के लेग होती है, पैर दोनों टुकड़े हो गए थे। ये गोश्त बाहर आ गया था, हड्डी ऊपर नीचे चली गई थी, अप एंड डाउन हो गई थी। ये मामला ऐसे था कि अगर किसी और हॉस्पिटल में जाते तो मैं ये ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पे 3 लाख रुपए का खर्चा था। उस टाइम पे डॉक्टर सईद मिनास प्रेजेंट थे हॉस्पिटल में, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। 7 to 9 PM उनका प्रेजेंट था, वो जो ओपीडी कर रहे थे। उसी दिन मैंने डॉक्टर सईद मिनास से बात की कि डॉक्टर साहब ये मेरे गरीब बंदे हैं, लेबर हैं, कर नहीं सकते, रोजगार कमाते रोजाना के हिसाब से नहीं कर सकते। उस टाइम पे उस बंदे की आंखों में भी आंसू आ गए थे। हनीफ भाई किसी तरह से ये मामला को हल कर दें। मैं उसी टाइम पे इमरजेंसी में ओपीडी में आ गए, ER में आके उस टाइम पे प्रेजेंट डॉक्टर अली थे ER में, उनसे भी बात की कि डॉक्टर सईद मिनास से मुझे मुलाकात करवा दें। उसी टाइम पे डॉक्टर सईद मिनास से मैंने मुलाकात की, उसी टाइम पे मैंने ऑपरेट करवाने की कोशिश की। मैं उसी टाइम पे तकरीबन ये मामला 7:30 बजे के थे, रात के तकरीबन 12:30 बजे तक मैं प्रेजेंट था OT में, ऑपरेशन थिएटर में। सईद मिनास से मेरी बात हुई, एडमिट करवा दिया OT में, इमरजेंसी में। डॉक्टर सईद मिनास ने कहा नहीं भाई कोई मसला नहीं है, मैं उसी टाइम पे दाखिल करवा देता हूँ। वो अपने पेशेंट को छोड़ के मेरे साथ आए। वो इंसानियत के नाते वो एहसास की बात थी कि वाकई इन्होंने अपना काम दिखाया। उस टाइम पे डॉक्टर सईद मिनास अपनी सीट को छोड़ के मेरे साथ आए OT में, ऑपरेशन थिएटर में। उसी टाइम पे उसका ऑपरेशन भी किया तकरीबन रात के 1:30 बजे। उस रात के 1:30 बजे के बाद रात के 1:45-2 बजे उनकी फैमिली भावलपुर से आई। मेरी सामने की बातें, आंखों में आंसू आ गए, मेरे खुद के भी आंखों में आंसू गए। उस बेस पे के इंसानियत के अंदर जो अमीर इलेक्शन बापा साहब ने मुझे सिखाया है, जो तालीम मुझे दी, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत हज़रत अल्लामा इलियास काज़ी माशाअल्लाह बापा, जिसको मैं मानता हूँ। के बाद आपके अंदर तब्दीली क्या है? तब्दीली माशा है कि मैं माशाअल्लाह किसी मामला को देखता हूँ, मैं इंसानियत के नाते एहसास होता है कि कर भला तो हो भला, ये बात है माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के समझाने से, आपके मदनी मुज़ाकरे के अंदर जहन देने से कि किसी मजबूर की मदद की जाए, किसी गरीब की मदद की जाए, तो मेरे इस भाई ने एक गरीब की मदद की, पूरा घर इनका शुक्र अदा करता रहा। और ये सारा कुछ क्या था? ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के समझाने पर था। आपका ये जहन देना था कि किसी गरीब को गरीब समझकर छोड़ा ना जाए, किसी की मदद कर ली जाए, दुआ ले ली जाए। न जाने कौन सा ऐसा लम्हा हो उसके दिल से दुआ निकले और हमें पता ना हो कि हमारे जो बिगड़े हुए काम संवरना शुरू हुए हैं, ये उसी दुआओं का नतीजा है। तो आप भी अगर कभी देखें कोई परेशान हो, कोई नाबीना रास्ता तलाश कर रहा हो, उसे रास्ता बता दें। कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा हो, ज़ईफ़ होने की वजह से रोड नहीं क्रॉस कर पा रहा हो, तो आप भी आगे बढ़िए। यकीन मानिए कि ये वो खिदमत है कि जिसके बाद आप इसकी लज्जत जो है महसूस करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी गरीबों की मदद करने की, परेशान हालों की मदद करने की सादत अता फरमाए। आज हमारे पास एक सबक आमूज़ वाक़या नहीं बल्कि 2 हैं, हम आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूसरा भी दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ जी, आपके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने आपको तब्दील करके रख दिया? जरा हमें मदनी चैनल के नाज़रीन को शेयर करें। एक तो बहुत ही हादसाती वाकया हुआ था मेरे साथ। मैं गाड़ी में था, मेरे से आगे एक लेडीज और स्कूटर पे इसके साथ जेंट्स था। अल्लाह ने करम किया इस पे कि ऐसी टन की गाड़ी उलट गई, मोटरसाइकिल गिर गई। बच्ची लड़की थी, लड़की जवान थी माशाल्लाह, गिर गई। ऐसी जैसे ही गिरी खड्डे में गिरी और उसका सर फट गया। तड़पने लगी, इतनी तड़पने लगी। फिर मुझे मालूम था कि ये तो बड़ा खतरनाक हादसा है, लेकिन उठाना भी रिस्क था। इसके लिए मैं उठा लिया अल्लाह का नाम लेकर और फौरन इसको जियाउद्दीन हॉस्पिटल ले गया। जैसे ही जियाउद्दीन हॉस्पिटल ले गया, फौरन उनको कहा सबको लोगों को जल्दी उठाओ, उसको OPD भी ले गया। जल्दी हुआ इनका, मैंने CT स्कैन वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, इसका मामला सही हुआ। फिर इसके घर वालों को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत संभल गई। इस पूरे रास्ते आप क्या पढ़ते हुए जा रहे थे? बस दरूद शरीफ पढ़ता रहा। बीवी भी मेरे साथ थी, वाइफ भी मेरे साथ थी। बिल्कुल कंफ्यूजिंग हालत थी। होती है जैसे हादसा होता है, किसी के साथ होता है तो उसको पता चलता है कि किस तरह होता है। खून बह रहा था बच्ची की, फिर हो गया, कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। CT स्कैन के साथ वो कवर हो गया। फिर रात को 4 बजे तक इसके साथ रहे हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और आका के दर में हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अगर कभी ऐसा वाक़या हो जाए हादसाती तौर पर, तो आप शोर मचाने की बजाय, अब इधर उधर परेशान हाल होने की बजाय अपने आप को कंट्रोल करें। सबसे पहले आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना, तो होगा ये, जब आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप
अगला डिसीजन क्या लेना है इस काबिल हो जाएंगे कि अब हमें करना क्या है। अगर ये मेरे बुजुर्ग उस वक्त अगर कंफ्यूज हो जाते और अपना सर पकड़ के बैठ जाते तो शायद मेरी वो इस्लामी बहन जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो अस्पताल वक्त पर ना पहुंच पाती और वो बच भी नहीं पाती। इन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर पूरा रास्ता दुरूद पाक पढ़ते चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल करम हो गया। तो आप भी कोशिश कीजिए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी इनामात में अल्हम्दुलिल्लाह हर आशिक रसूल को, अपने मुरीदीन को, अपने मुहिब्बीन को रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ने का हदफ दिया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इससे आपका शुमार भी इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मुख्तसर मुकाबला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं वबरकातुहू। आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर। आपसे हम एक सवाल करेंगे, अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको बहुत ही प्यारी किताब इंशाल्लाह मेंढक सवार बिच्छू देंगे। फिर आपसे सवाल ये है, ये बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने अंबिया करम पर 4 किताबें नाजिल फरमाई, उन चारों किताबों के नाम क्या हैं? तौरात, इंजील, जबूर ठीक है। और कुरान। कुरान। 4 किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया करम पर नाजिल फरमाई और वो चारों किताबों के नाम इन्होंने बता दिए हैं और बिल्कुल दुरुस्त नाम बताए हैं। इन्हें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बहुत ही प्यारी किताब मेंढक सवार बिच्छू ये तोहफे में देते हैं। और इसके पढ़ने वाले के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल्लाह अलैह ने क्या दुआ दी है, आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ए आशिकान रसूल, ये मदनी फूल कबूल कीजिए। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई रिसाला मेंढक सवार बिच्छू के 28 सफ़हात पढ़ या सुन ले उसे दुनिया और आखिरत की आफतों से बचा। आमीन। मदनी चैनल देखते रहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने इस किताब को पढ़ने की अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी दुआ फरमाई है। आप भी मकतबतुल मदीना से ये किताब हासिल करें और जल्द पढ़ लें और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल्लाह अलैह की दुआओं से हिस्सा पाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये किताब आपके लिए तोहफा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग, आपका नाम क्या है? मोहसिन मोहम्मद अली। आपसे हम एक सवाल करेंगे और अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको बहुत ही प्यारी किताब चिड़िया और अंधा सांप पेश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी। चलो ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबें नाजिल फरमाई, उन चारों किताबों के नाम भी पता चल गए। ये बताइए कि सबसे पहली किताब जो है तौरात शरीफ वो किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये किताब आपको तोहफे में पेश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिया। मोहम्मद जिया। सुभान अल्लाह। जिया का मानी क्या बनता पता है? रोशनी। अपने नाम का मतलब भी पता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने नाम का मतलब पता नहीं होता, मगर हमारे इस बच्चे को माशाअल्लाह अपने नाम का मतलब भी पता है। हम आपसे एक सवाल करेंगे और आपने अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको बहुत ही प्यारी किताब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तबलीग दीन का अंदाज ये तोहफे में देंगे। क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं? जी। जवाब देंगे? जी। चलें, आपसे सवाल ये करते हैं, ये बताइए कि मुसलमान उम्रा अदा करने के लिए कौन से शहर जाते हैं? मक्का मुकर्रमा। जी, आपने फरमाया मक्का मुकर्रमा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आपको ये किताब तोहफे में पेश की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी आसान आसान सवाल पूछ लेते हैं हम, लेकिन सवाल के जवाब पता होने चाहिए। आपने भी मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उम्रा करना है तो उम्रा अदा करने के लिए मक्का जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह वहाँ से रोते रोते अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी देंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। माशाल्लाह। हम आपसे एक नहीं 3 सवाल करेंगे और तीनों सवाल का आपने दुरुस्त जवाब देना है। अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी किताब जन्नतियों की ज़बान, जन्नत में कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी, वो किताब तोहफे में देंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। चलें, ये बताइए, हमारे एक इस्लामी ने तो बता दिया कि तौरात शरीफ जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। बाकी 3 किताबें किन 3 नबियों पर नाजिल हुई? कुरान शरीफ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। माशाल्लाह। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान शरीफ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी, आपने थोड़ा सा टाइम लिया मगर जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपको ये बहुत ही प्यारी किताब जन्नतियों की ज़बान तोहफे में पेश की जा रही है।
आप छोटे हैं इसलिए आपसे बच्चों वाला ही सवाल करेंगे और बच्चों के मुतालिक सवाल करेंगे। ये बताइए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में जब शहादत हुई तो एक छोटा सा बच्चा भी था जो आपके हाथों में जिसने जामे शहादत नोश किया, उस मदनी मुन्ने का नाम बता दें। हजरत अली असगर रज़ी ताला अन्हु। इतनी फास्ट बताया आपने। हजरत सैयदना अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब भी दुरुस्त है जी। आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। जब तोहफा लेते तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। आमीन व इय्याकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बुजुर्गों? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस नाम की बरकत अता फरमाए। एक सवाल करेंगे आपसे, अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको फैज़ान गरीब नवाज किताब तोहफे में देंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हैं, फरिश्ते भी एक काबे का तवाफ करते हैं, और फरिश्तों के काबे को क्या कहा जाता है ये बताइए। जिस तरह मुसलमान खाने काबा का तवाफ ज़मीन पर करते हैं, इसी तरह जो अल्लाह ताला की मलाइका हैं फरिश्ते, वो आसमान पर बैतुल मामूर अल्लाह ताला ने उनके लिए तवाफ के लिए बनाया है, तो वो बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं जिस तरह मुसलमान खाने काबा का तवाफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी कि जिस तरह एक इंसानों का काबा है इसी तरह फरिश्तों का भी एक काबा है, और फरिश्तों के काबे को बैतुल मामूर कहते हैं जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आपको ये किताब तोहफे में दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास सत्तारी। मोहम्मद वकास सत्तारी। आपसे हम एक सवाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करेंगे। मदनी चैनल देखते हैं आप? कभी कभी। मदनी चैनल पर आने वाले किसी 5 सिलसिलों का नाम बता दीजिए। मदनी मुज़ाकरा नंबर 1, ज़हनी आजमाइश, 2, सुन्नत बरा इज्तिमा, नेकी की दावत, नेकी की दावत ये सिलसिला नहीं है, रूहानी इलाज, 4, एहकाम तिजारत। एहकाम तिजारत, 5। लगता है शोबा तिजारत से आपका ताल्लुक है इसीलिए आपको ये प्रोग्राम भी याद है। जी जी। आपने 5 सिलसिलों के नाम बताकर जवाब दुरुस्त दे दिया है और आपको एहतराम मुस्लिम किताब तोहफे में दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रयान अतारी। मोहम्मद रैयान अत्तारी। उम्र कितनी है आप? 10 साल। 10 साल। आपसे एक सवाल करता हूँ लेकिन थोड़ा आसान सवाल कर लूँ, क्या कहते हैं? आसान करूँ? जी ठीक है। ये बताइए, वो कौन सी रात थी जिस रात मुसलमानों पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए नमाज का तोहफा भेजा गया? शबे मेराज। शबे मेराज मुसलमानों पर नमाज का तोहफा फर्ज किया गया। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको भी बहुत ही प्यारी किताब तोहफे में दी जा रही है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वाह भाई, बरकातुहू। बड़े तर्ज में अपने सलाम का जवाब दिया। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। मुस्तफा, माशाअल्लाह। चलें आप हमें कोई कुरान की सूरत सुनाएंगे तिलावत के साथ? सुनाएंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की आपने। मैं आपको एक बेटा नसीहत करता हूँ कि कुरान शरीफ को थामे रखो, कुरान शरीफ पढ़ते रहें। इसकी बरकत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में भी आएंगी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब कुरान पढ़ने का मामूल होगा तो ये कुरान शरीफ वो किताब है जिसका एक हर्फ पढ़े तो 10 नेकियां मिलती हैं। आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छी सूरत सुनाई। आपको भी एक तोहफा पेश करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तोहफा लेते तो क्या बोलते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं बरकातुहू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है सर्दी ज्यादा लग रही है आपको। जी जी। नाम बताएं आपका, क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल है, माशाअल्लाह। देखिए बिलाल के साथ जब लफ्ज मोहम्मद बिलाल लगा तो कितनी खूबसूरती पैदा हो गई है ना। अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाया करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी हासिल होंगी। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे, सवाल का जवाब आपने देना। अगर आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको एक बहुत ही प्यारी किताब तोहफे में दी जाएगी। ये बताइए, जब मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो वाक़या मेराज की सबसे पहले तस्दीक किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले वाक़या मेराज की तस्दीक की, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको ये किताब तोहफे में दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की, माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है ये ना कीजिएगा।
सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सेगमेंट है ये ना कीजिएगा। मोहम्मद हनीफ भाई ने और हाजी अब्दुल लतीफ़ ने हमें वाक़या बयान किया रोड एक्सीडेंट के हवाले से। मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। हुआ ये कि आज से तकरीबन 16-17 साल पहले की बात है। एक न्यूज़ रिपोर्टर कराची से बलूचिस्तान हब चौकी पर एक खबर लेने के लिए गया, और जब खबर से वापसी आ रहा था तो बहुत जल्दी थी। जल्दी क्यों थी कि आज के दिन उसके भाई की शादी थी। वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने पूरी DSNG के साथ, OB वैन जिसे कहते हैं, उसके साथ वापसी कराची की जानिब आ रहा था कि यहाँ पर मुहाजिर कैंप नंबर 4.5 पर अचानक उसने देखा कि कुछ रश लगा हुआ है। और जब उसने गाड़ी अपनी रोकी तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट हो चुका है, अगर आप खबर बनाना चाहें तो खबर बना लें। तो उसने ये कहा कि नहीं, मेरे भाई की शादी है और मैं खबर नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। लोगों ने कहा कि यार ये बेचारा जख्मी है, तड़प रहा है, अगर आप खबर बनाना चाहें तो बना लें। मगर उसने इग्नोर किया और वो चला गया। जब वो अपने घर पहुंचा, अपने ऑफिस से फारिग होने के बाद घर पहुंचा निकाह के वक्त, तो पता चला कि उसका भाई काफ़ी देर पहले से महाजिर कैंप गया हुआ है और वहाँ पर किसी दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए हुए हैं, वो कपड़े लेने के लिए गया है और अभी तक पहुँचा नहीं। काफ़ी परेशानी हुई और ढूंढना शुरू किया। तलाश करते 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 जब उस दर्जी के पास पहुंचे तो पता चला कि इसका भाई यहाँ से कपड़े लेके जा चुका है। फिर किसी तरीके से उसके भाई की इत्तला ना मिली तो फिर अस्पतालों में, थानों में चक्कर लगाए, और जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल जाके पता चला है कि एक नौजवान जख्मी हालत में महाजिर कैंप से लाया गया था, जिसने यहाँ पर पहुंचने से पहले ही बर वक्त नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से उसका इंतकाल रास्ते में ही हो गया। अब ये नौजवान जब मुर्दा खाने पहुंचा है, डेड बॉडी की तरफ, अपने भाई की तरफ, सर्द खाने की तरफ, और जब उसने वहां पर जाके उस नौजवान को देखा तो इसकी चीखें निकल गई। ये वही नौजवान था जिसे जख्मी हालत में ये भाई छोड़कर कि मैं इसकी रिपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे मेरे भाई की शादी में जाना है, और फिर अपना चीखें मारने लगा। और फिर चीखें मारने के बाद अपना सर पकड़ के बैठ गया और ये कहने लगा कि काश कि मैं उस नौजवान की रिपोर्ट करने के बहाने उसके करीब जाता तो मुझे पता चलता, अरे मैं जिस जख्मी को छोड़ कर आया था ये कोई और नहीं, मेरा अपना सगा भाई था, जिसकी शादी का सेहरा बिल्कुल तैयार था और शादी की तैयारी बिल्कुल उरूज पर थी, और ये अपने भाई की शादी में शिरकत करने के लिए गया। मगर इस नौजवान को अपने भाई की नमाज जनाजा में शिरकत करना नसीब हुआ। अब इसके जहन में ये बात है कि अगर मैं उस नौजवान को रोड पर ना छोड़ता, एक खबर लेने के ही बहाने मैं इसके पास चला जाता, तो मुझे पता चलता कि जो जमीन पर तड़प रहा था ये कोई और नहीं, मेरा अपना सगा भाई था, जो अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गया था, मगर शादी के कपड़े इसके नसीब में ना थे और इसे कफन पहना दिया गया। तो ये आप सोचें कि ये दो इस्लामी भाई जिन्होंने हमें तासुरात दिए, जिन्होंने हमें खबर बताई कि हाजी अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद हनीफ भाई, इन्होंने किसी तरह जख्मियों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, तो ये याद रखिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है। और मेरे वो भाई भी कि जो वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिलों पर मतलब आंखें बंद करके चलाते हैं, मोटरसाइकिलों पर कर्तव्य दिखाते हैं, ये याद रखिए कि आपके घर पर आपकी वालदा आपका इंतजार कर रही होंगी। आप अगर अपना जहन बनाएं कि मैं घर से निकला हूँ और अब मैं रोड पे तमाशे दे रहा हूँ, अगर मैं सही नहीं पहुंचा तो मेरी वालदा का क्या हाल होगा, मेरे वालिद का क्या हाल होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप इस आदत में मुब्तला हैं तो ये ना कीजिएगा। रोड पर अगर कोई मरीज तड़प रहा है तो उसे अस्पताल पहुंचा दीजिए। न जाने किस माँ का लाल होगा, आप उसे अस्पताल पहुंचा देंगे, वो सेहतयाब हो जाएगा, पूरे खानदान का कफील होगा। तो अगर आप नजरअंदाज करके चले जाने की आदत है तो इसे निकाल दीजिए, और अगर ऐसा करते हैं तो बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी ये ना कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप और मदनी चैनल हमने शुरू किया दिन की रोशनी में, और अब अंधेरा हो गया है और हमें लाइटें जलानी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमने रिकॉर्डिंग शुरू की नमाज असर के बाद, और रिकॉर्डिंग के दौरान ही अज़ान मगरिब हो गई, और जाहिर सी बात है अमीर अहले सुन्नत ने तरबियत की है, अमीर अहले सुन्नत का फरमान है कि कुछ भी हो जाए नमाज बाजमात नहीं छोड़नी। तो हम नमाज बाजमात के लिए चले गए, नमाज वगैरह अदा की मगरिब की, और उसके बाद पहुंचे यहाँ पर तो अंधेरा हो चुका था। तो फिर हमें सिलसिला मुकम्मल तो करना था आपको, क्योंकि आपको सिलसिला पहुंचाना है, इसलिए फिर हमने लाइटें लगाई, और लाइटें लगाकर कुछ सिलसिला दिन की रोशनी में किया, कुछ सिलसिला लाइटों की रोशनी में किया, और आप तक ये प्रोग्राम मुकम्मल करके पहुंचाया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद
بھی آپ کو پروگرام دکھائیں گے. آئندہ بھی پروگراموں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری چیزیں اور اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں گے. دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ آپ اور مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.